and welcome students to my channel Manthan Matrix, and today we are going to discuss exercise 3.3 of class 10. Solve the following pair of linear equation by the substitution method. So here another method we have to study, which is a substitution method. So first try to understand what is substitution method. See with the help of the example. See question number 1, first part. We have x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4. These are the two equations which we have to solve, and we have to find out the value of x and y. So what is substitution method? In this method we have to substitute the value of any one of the variable from any one equation. हम इसमें किसी भी एक इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल या x या फिर y की वैल्यू को इक्वेट करते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. See, if we have x minus 4 is equals to y, from equation number 2 we can write this. So it means the value of y we have x minus 4, and this value of y if we substitute in equation number 1, substituting the value of y in equation 1. See what we get? Equation 1 is x plus y is equals to 14, and in place of y we are substituting this y, x minus 4 is equals to 14. So we have 2x minus 4 equals to 14, 2x equals to 18, or x we get 9. Again the value of this 9 we will substitute in any of the equation to find out y. Let us substitute in equation number 1. So we have x plus y is equals to 14, फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, और इसमें हम x के प्लेस में 9 पुट कर रहे हैं. तो 9 plus y is equals to 14, we get y is equals to 14 minus 9, so y is equals to 5. So x equals to 9 and y is equals to 5 are the solutions of this equation. तो x और y की ये एक solution हमारे पास निकल जाता है. Let us see the second part of this question. We have s minus t is equals to 3, equation number 1, and s upon 3 plus t upon 2 is equals to 6. तो जहां से भी हमें इजी लगे वैल्यू को इक्वेट करना, उस इक्वेशन को हम यूज कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. फिर इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं? s minus 3 is equals to t. हमारे पास t की वैल्यू आ गई s minus 3. Now substituting value of t in equation, हमने कौन सी इक्वेशन से निकाली है t की वैल्यू? 1 इक्वेशन से. तो किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट इसको करेंगे. तो देखिए s upon plus in place of t we can write s minus 3 upon 2 is equals to 6. To simplify this, take LCM. 3 2 is 6. We have 2s plus 2 3 times. So 3 into s minus 3 is equals to 6. So what we have? 2s plus 3s minus 9 is equals to 36. These type of calculations many times we have done. So 3s plus 2s is 5s is minus 9 is equals to 36. 5s we get 45, s equals to 45 upon 5, that is equals to 9. तो s की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 1. किसी भी रख सकते हैं 1 या 2 दोनों में से, बट जो आपको इजी लगे उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. s के प्लेस में हम 9 पुट कर रहे हैं, तो 9 minus 3 equals to 3, 9 minus 3 equals to 3, it means t is equals to we get 6. s equals to 9 and t is equals to 6 are the solution of this equation. Let us see the third part now. In third part we have the two equations, 3x minus y is equals to 3, and second one is 9x minus 3y is equals to 9. So see this, if we have a1 upon a2 here, we get 3 upon 9, which we get 1 by 3. b1 upon b2 if we will find out, we have minus 1 upon minus 3. Again it is 1 by 3, and c1 upon c2 we have 3 by 9, which is again 1 by 2.
So this is the condition when a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. And which condition is this? So watch this video. Just go to the previous videos. पीछे के वीडियोस में जाइए, हमने इन सारी कंडीशंस को वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. तो ये जो हमारी कंडीशन होती है, ये हमारी कोइंसाइडिंग लाइंस की कंडीशन होती है और जिसमें हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं. तो अगर आपको ये देखने हैं तो आप पीछे की वीडियोस वॉच करिए या इसमें जो लिंक दिया हुआ है इससे आप देख सकते हैं. तो वहां पर ये सारी कंडीशंस हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है. तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. We will not find the values of particular value क्योंकि इसके हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस. फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 0.2x plus 0.3y equals to 1.3 and 0.4x plus 0.5y equals to 2.3. तो इसको आप सिंपल इक्वेशंस पे फॉर्म करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते हैं. तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो 2x plus 3y is equals to 13 और सेकेंड इक्वेशन 4x plus 5y is equals to 23 फॉर्म हो जाएगी. This is equation number 1. This one is equation number 2. Now we have to apply the same method. From any equation we have to equate any of the variables. Supposing equation 1 को use कर रहे हैं, see this one. 3y is equals to we can write 13 minus 2x और y is equals to 13 minus 2x by 3. This value of y substituting value of y in equation number 2. क्योंकि फर्स्ट से हमने इक्वेट किया तो पुट किस में करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में. तो लेट अस सी. तो पुट करते हैं 4x plus 5 into y की प्लेस में आप रखते हैं 13 minus 2x upon 3 is equals to 23. तो सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें आपको 3 एलसीएम लेना पड़ेगा. 3 into 4 that is 12x प्लस इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 into 13 65 minus 5 into 2 this is 10x equals to 23. So see this 12x we have minus 10x. 12 minus 10 we get 2x plus 65 और इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पर आपके पास आएगा 69. तो we get 2x equals to 69 minus 65. तो we get x. 2x equals to 4 and x equals to 2. अब ये जो x की वैल्यू है, this value of x substituting in any of the equation, किसी में भी पुट कर सकते हैं. सपोज इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर रहे हैं तो सी फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y is equals to 13. तो देखिए x की वैल्यू आप यहाँ 2 पुट कर रहे हो तो 2 2 जब we have 4 plus 3y is equals to 13. तो we write 3y equals to 13 minus 4. तो 3y equals to 9 और we get y is equals to 3. So x equals to 2 and y equals to 3 is the solution of these equations. So let us see now fifth part of this question. Fifth part discuss करते हैं. Fifth part है हमारे पास under root 2x. Fifth part of this question is under root 2x plus under root 3y is equals to 0. And second equation is root 3x minus root 8y is equals to 0. तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास अगर दोनों को कांस्टेंट टर्म्स अगर हमारे पास बोथ 0 होते हैं, यहाँ पर दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म 0 है, तो ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 ही आता है. तो लेट अस सी. थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कैसे आएगा दोनों पार्ट का 0. तो इक्वेशन नंबर 1 को हम यूज कर रहे हैं और यहाँ से y की वैल्यू इक्वेट करने के लिए रूट 3y इक्वल्स टू माइनस रूट 2x और y को हम लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 2.3 इंटू x. दिस वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2. क्योंकि फर्स्ट से निकाले हैं तो ऑब्वियसली हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे. तो यहाँ रखते हैं रूट 3x माइनस रूट 8 इंटू इन प्लेस ऑफ y वी कैन पुट माइनस रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू दिस x इज इक्वल्स टू 0. तो अब हमारे पास अगर हम यहाँ से रूट 3 एलसीएम ले लेते हैं, ये रूट 3 इंटू रूट 3 दिस विल बिकम 3x माइनस अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2. अंडर रूट 8 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा अंडर रूट 16 माइनस माइनस प्लस हो गया. अंडर रूट 16 की वैल्यू प्लस 4x इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट वी हैव 7x अपॉन रूट 3 is equals to 0. So this implies x equals to 0.
क्योंकि आप √3 को भी और 7 को भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर हम x को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल्स टू -2/3 minus √2/√3 multiply with 0 and this will also gives us 0। तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि बोथ द वैल्यूज ऑफ x and y are 0। Got it? Now come to sixth part of this question। sixth part हमारे पास है, sixth part is 3x/2 minus 5y/3 equals to -2 and x/3 plus y/2 is equals to 13/6। This is the sixth part of this question। Let us simplify। कुछ किसी भी इक्वेशन से आपको x या y की वैल्यू इक्वेट करनी है, अनदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, मेथड विल बी सेम, बट अब ये आप चूज कर लीजिए कि कौन सी इक्वेशन को आप सिंपलीफाई करना पसंद करते हैं। तो लेट अस सी 5/2 को हम लिख सकते हैं 13/6 minus x/3। तो यहाँ से अगर हम सिंपलीफाई करते हैं y/2 equals to 6 एलसीएम ले लेंगे तो दिस विल बी 13 minus 2x। 3 2 6 आएगा तो यहाँ 2x हो गया। तो अब हमारे पास 2 3 6 अगर हम इसको कैंसिल कर लें तो y की वैल्यू 13 minus 2x/3 हमारे पास आ जाती है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव कैलकुलेटेड दिस। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू को इक्वेट किया है। आप x भी कर सकते थे, इक्वेशन नंबर 1 से भी कोई वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं। हमने y की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेट की तो इसको हम पुट करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो सी इक्वेशन नंबर 1 is 3x/2 minus 5/3 into, in place of this y we are substituting 13 minus 2x/3 equals to -2। Now simplify this one। कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं? देखिए इस तरीके की कैलकुलेशंस आप बहुत बार जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं। तो we have 3x/2 here minus, अब आप चाहे 5 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दिस विल बी 65 minus 10x upon 3 3 9 is equals to -2। इक्वेट करते हैं 2 और 9 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो इट विल बी 18 2 9 18 9 into 3 we can write here 27x minus 9 2 18 2 multiply by this 2 into 65 minus 10x equals to -2। Before taking LCM we cannot cross multiply it, तो पहले आपको 9 और 2 में LCM यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। 27x minus 65 into 2 equal to minus 130 minus minus will becomes plus 20x equals to 18 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास -36। अब 27x ये है और 20 ये है तो हमारे पास ये हो गया 47x equals to 130, इधर आके प्लस हो जाएगा दिस वन एंड -36। 47x equals to we get 94। So what we get is 94/47। 47 से इसको कैंसिल करो, it will be cancelled 2 times। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो स्मॉलर वैल्यू आपको ये इसमें रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इन प्लेस ऑफ x we are substituting 2, we get 2/3। ठीक है, हमने x के प्लेस में 2 पुट कर दिया तो 2/3 प्लस y/2 is equals to 13/6। y/2 equals to we can write 13/6 minus 2/3, take LCM 6, so here we have 13, 3 2 6, 2 2 we get 4, तो 13 minus 4 we can write 9/6। तो हमारे पास यहाँ तो जो वैल्यू आई है वो हमें मिला है y/2 is equals to 9/6। So we can write y is equals to 9 into 2/6। 3 2 6, 3 3 9, 2 से 2 cancel out, y equals to 3। तो y equals to what we have, तो हमें जो x की वैल्यू मिली थी x equals to 2 and y is equals to 3 is the solution of these equations। I think all the parts now this method is clear to you कि हमें किस तरीके से substitution method को use करना है।
Hey, let us discuss now question number 2 of this exercise 3.3. See question number 2, what we have in question number 2, solve 2x plus 3y is equals to 11. तो हमें 2x plus 3y equals to 11 और 2x minus 4y is equals to minus 24. ये दो इक्वेशंस को पहले सिंप्लीफाई करना है and hence find the value of m if y is equals to mx plus 3. और एक इक्वेशन और दी है y equals to mx plus 3. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसको समझते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा. हमें सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है जिससे हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी, जैसे कि अभी हम पहले के क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं. फिर जो x और y हमें मिलेगा वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमें इस m की वैल्यू को इक्वेट कर देना है. तो लेट अस सी क्योंकि इस तरीके से सिंप्लीफाई होता है. देखिए इक्वेशन नंबर 1 हम यूज कर रहे हैं 3y is equals to 11 minus 2x. The same elimination substitution method we are using here. तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 11 minus 2x upon 3. Substitute this value in equation number 2. Substituting value of y in equation number 2. तो पुट करते हैं. देखिए we have 2x minus 4 into y के प्लेस में क्या रखोगे 11 minus 2x upon 3 is equals to minus 24. अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको. सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इसके नीचे 1 है तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा. 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया तो 1 3 टाइम्स 3 2 जा we get 6x here. 3 1 जा 3 तो 1 है यहाँ पर तो 4 into 11 minus 2x will be as it is equals to minus 24. Open these brackets now. 6x minus 4 into 11 44 minus minus will become plus 8x equals to. अब 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 1 7. दिस इज इन 72. 6x ही है प्लस 8x ही है, दोनों पॉजिटिव है तो 8 प्लस 6 14x इज इक्वल्स टू माइनस 72 प्लस 44. 44 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया राइट साइड में तो यहाँ माइनस था इधर आके प्लस हो गया. तो हमारे पास क्या आएगा 14x इज इक्वल्स टू 12 minus 4 we have 8. यहाँ पर आके 6 minus 4 is 2. It will be minus 28. So x equals to minus 28 upon 40. 40 is 28. X we get minus 2. तो हमारे पास एक x की वैल्यू इक्वेट हो गई है. अब ये क्या करते हैं इस x की वैल्यू को चाहे तो अब यहाँ भी इनपुट कर सकते हैं. देखिए सीधे हमने y इक्वेट किया था यहाँ पे y equals to the 11 minus 2x upon 3. तो डायरेक्टली हम यहाँ भी रख सकते हैं 11 minus 2 into in place of x we are substituting minus 2 upon 3. So what we get 11 plus 4 upon 3. 11 plus 4 is 15 by 3. We can write y equals to 5. Now up to this we are doing in the previous questions also, but here one more part is added. We have to equate the value of m if x and y will satisfy this equation also. तो हम ये जो x और y हमने फाइंड किया इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इससे m की वैल्यू भी हमें इक्वेट करनी है. तो लेट अस सी इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. हमारे पास इक्वेशन है y is equals to mx plus 3. इसमें y के प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 5 is equals to m into x के प्लेस में आप रख रहे हो minus 2 plus 3. What we have 5 minus 3 equals to minus 2m. So 5 minus 3 is 2 equals to minus 2m. So what we get this implies m is equals to minus 1. तो हमारे पास जो m की वैल्यू आ गई वो आ जाएगी -1. तो हमारे पास ये जो एडिशनल पार्ट था ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने x और y जो हमने इक्वेट किए थे इन दोनों इक्वेशन से वो इसमें सब्स्टिट्यूट करके हमें m की वैल्यू को इक्वेट करना था. Now come to question number 3, first part. अब देखिए इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं. अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है और फिर इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको इनको सिंप्लीफाई भी करना है. तो वॉच इट प्रॉपर्ली कि इक्वेशंस फॉर्म करना ही मेन है. अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो फिर आपके आंसर्स नहीं निकलेंगे. तो आपको ध्यान से देखना है कि हमें अलग अलग कंडीशंस को डिफरेंट कंडीशंस हमारे पास होंगी तो हमें किस तरीके से डिफरेंट इक्वेशंस को फॉर्म करना है. So let us see the first part.
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड हमारे पास यहाँ पर दो नंबर्स, द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैट। तो हमें यहाँ पर टू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो लेट अस टेक, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x एंड सेकेंड नंबर को हम कंसिडर कर लेते हैं, सेकेंड नंबर इज सपोज y। अब देखिए जहां पर बात आती है डिफरेंस की, तो डिफरेंस में हमारे पास ये डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर इन दोनों में से बड़ा है, क्योंकि हम उसी में से हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम राइट कर देते हैं वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो हमारे पास अगर हम राइट कर रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, हमने दोनों नंबर का डिफरेंस 26 दिया है, तो हमने x माइनस वाई अगर लिख दिया तो इसका मतलब हमारे यहाँ x नंबर ग्रेटर है, y इज द स्मॉलर नंबर। गॉट इट? तो अब यही कंडीशन हम सेकंड इक्वेशन को बनाते समय भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमने क्या कंडीशंस में अप्लाई की है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, अब एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली 3 टाइम्स कौन सा नंबर है x, क्योंकि इस नंबर को हमने ग्रेटर लिया है। तो व्हाट वी विल राइट, x इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y। अगर आप y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x लिख दोगे यहाँ पर, तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगी और यहाँ पर आपकी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो अगर हम यहीं पे y माइनस एक्स लिखते, आप समझ रहे ना, कि अगर हम इसको y माइनस एक्स लिखते तब कंडीशन ये होती कि हमने y को ग्रेटर लिया है, तो ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3x फॉर्म होती। गॉट इट? तो यहाँ पर इस कंडीशन को बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो वी हैव दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, x के प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो 2 से x की वैल्यू 3y है, तो ये 1 में पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 है और x के प्लेस में हम पुट कर रहे हैं 3y। तो 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26, वी कैन राइट 2y इज इक्वल्स टू 26 व्हिच गिव्स y इज इक्वल्स टू 13। y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 2 x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 3y, x इक्वल्स टू 3 इनटू, इन प्लेस ऑफ y वी कैन पुट 13 into 3 is 39, x equals to 39, y is equals to 13. It means the first number is 39 and second number is 13. So our condition will also be satisfied in these two equations. अगर हम 39 में से 13 माइनस करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें, we get 26 और ये वाला जो स्मॉलर है वो इसका 3 टाइम्स है, 13 into 3 is 39। तो हमारे दोनों कंडीशन इससे फुलफिल भी हो रही है, तो हम इनको एक एग्जामिनेशन में रीचेक भी कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो इट मींस हमारे इसके सॉल्यूशंस, ये जो हमारे आंसर्स हैं वो बिल्कुल। स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 13, फाइंड दैट। तो हमारे पास यहाँ पर दो एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री हैं। What are supplementary angles? Supplementary angles are those whose sum is equals to 180 degree. तो हमें यहाँ पर उन्हीं दो एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो we will consider first of all let the first angle is equals to x degree and second angle we can take as y degree. What is the first condition? What we can write? First equation, according to the first condition, these two angles are supplementary angle. Supplementary angle है तो इसका मतलब हम रख सकते हैं कि दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, that is equals to 180. First condition is this, the sum of these two angles is 180. And see the second condition, the larger of the supplementary angle exceeds the smaller by 18. अब इसमें से जो भी एक बड़ा है, हम किसी को फिर x को ग्रेटर मान लेते हैं, हम ऐसे लेके चल रहे हैं कि x बड़ा एंगल है, तो x इज इक्वल्स टू y प्लस 18, क्योंकि हमें कहा गया है कि जो x है वो y से ग्रेटर है, कितना बड़ा है, 18 मोर है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था
कि जब आपको कहा जाता है कि एक्सीड कर रहा है या मोर है, तो वी हैव टू ऐड दैट नंबर इन द स्मॉलर क्वांटिटी। तो स्मॉलर क्वांटिटी में हम उतना अगर प्लस कर दें तो वो किसके इक्वल बन जाएगा, लार्जर क्वांटिटी के इक्वल बन जाएगा। और यहाँ पर स्मॉलर क्वांटिटी क्या है हमारी, दैट इज वी हैव टेकन y इज अ स्मॉलर एंगल। तो हमने y में जब 18 प्लस कर रहे हैं तो इट विल बिकम्स इक्वल्स टू x, और वी कैन मेक दिस इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक these equations are very much essential to understand properly। ये आपको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो फिर आपके आंसर्स कभी भी करेक्ट नहीं आएंगे, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए कि x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 क्यों हम राइट कर रहे हैं, x हमारा ग्रेटर एंगल है और ये 18 मोर है। ये कहा गया है कि इट इज एक्सीडिंग मीन्स उससे ज्यादा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। अगर 18 टाइम्स कहा जाएगा तब मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने ये चीज डिस्कस की थी। इक्वेशन नंबर 2 व्हाट वी हैव, x इक्वल्स टू y प्लस 18। तो हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है अगेन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इसको चेंज इसलिए नहीं कर रहे, x की वैल्यू हमारे पास y प्लस 18 है, तो डायरेक्टली ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x from equation 2 in equation 1। तो इक्वेशन 1 है x plus y is equals to 180, और x के प्लेस में हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, we are substituting y plus 18 plus y is equals to 180। तो we get 2y is equals to 180 minus 18, और 2y is equals to 180 में से 80 माइनस कर दीजिए, 10 minus 8 is 2, यहाँ पर आपके पास है 7 minus 1 is 6, and this is 162। So what we get, y equals to 162 upon 2, that is equals to 81। The y angle is 81 degree। स्मॉलर एंगल हमारे पास 81 आ गया है। अब ये y की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, x equals to y plus 18, तो x we get y plus 18, that means 81 plus 18। So 81 plus 18, how much we have? 99। So first check, this larger angle is 99 and smaller angle is 81। This is the answer। Just in the examination, what you will do, you will write the answers properly। First angle, that is 99, and second angle we will write 81 degree। So this way you have to write it properly। So now let us discuss the third part of this question। Question number 3, third part। See the third part what we have। A coach of a cricket team buys 7 bat and 6 balls for rupees 3,800। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 में इसकी इक्वेशंस फॉर्म कर रखी हैं। तो उसी तरीके का वही क्वेश्चंस वहां पर एप्पल्स और ग्रेप वाला क्वेश्चन था। तो सिमिलर वे में बैट और बॉल वाले यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं, और इसके लिए हमें इक्वेशंस को फॉर्म करना है। तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं एक्सरसाइज 3.1 में, जहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया था। तो यहाँ पर भी थोड़ा हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट कॉस्ट ऑफ one bat is equals to rupees x, and cost of one ball is equals to rupees y। In the first condition, 7 bat and 6 balls total cost rupees 3,800। What we can write, cost of 7 bats। अगर हमारे पास एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है, तो हम 7 बैट की कॉस्ट कितना लिख सकते हैं, we can write it 7x। and similarly cost of 6 balls we can take is equals to 6y। so according to the first condition, their total 7x plus 6y total means sum, and that is equals to given to us 3,800। this will be equation number 1। now come to the second condition, later she buys 3 bat and 5 balls।
तो 3 बैट की कॉस्ट अगर हम लिख लेते हैं तो कितने लिखेंगे 3x, और 5 बॉल्स की कॉस्ट हम इसी तरीके से राइट करेंगे, दैट विल बी 5y एंड 3x plus 5y. Now the sum is 1750 rupees. This will be equation number 2. And again we have to find out the cost of bat, one bat and one ball, and we have to use the substitution method. तो substitution method से simplify करते हैं. देखिए, let us find the value of y first of all from equation number 1. So 6y is equals to 3800 minus 7x we can write, or y is equals to 3800 minus 7x upon 6 we can write. Put this value in equation number 2. So we have 3x plus 5 into 3800 minus 7x upon 6 is equals to 1750. Got it? So now अब इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए, let us see this. So we have 3x here. इसके नीचे फिर हमारे पास 1 है, तो इसके लिए हम LCM ले लेते हैं. Then we will take 6 LCM. 6 multiply this 3, we get 18x. अब इस 5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए. 5 0 0, 5 8 is 40 and 5 3 is 50 plus 4 is 90,000 minus 35x is equals to, ये जो 6 हमने लिया है 1750. ये है. अब हमारे पास x के लाइक टर्म्स ये दो है, 18x minus 35x. तो 18 minus 35 is minus 17x plus 90,000 is equals to, multiply this 6 here, cross multiply कर दीजिए इसको. 0 6 5 is 30, 6 7 is 42 plus 3 45, 4 6 in the 6 plus 4 10, 10,500. So minus 17x is equals to 10,500 minus 19,000. So minus 17x, how much we have? 10,500 minus 19,000. So it will be minus 8,500. Got it? अब इसको माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए. So this is 8,500 upon 17. इसको हम कितने टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं? 5 times. 17 5 is 85. So what we have the value of x, that is 500. So this value of x now put in this equation. यहाँ पर रख लीजिए या इक्वेशन 1 में 2 में किसी में भी पुट कर दीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो गेटिंग अप टू हियर थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आपको. तो अब हम ये वैल्यू x की 500 पुट कर रहे हैं इसमें. y is equals to see 3,800 minus 7 into 500 upon 6. So what we get y is equals to 3,800 minus 3,500 upon 6. How much it is? 300 upon 6. 6 5 is 30. So y we get here, y is equals to 50. It means cost of one bat is rupees 500 and cost of one ball is rupees 50. Students, let us start question number 3. Fourth part. The taxi charges in the city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered. तो कंडीशन इज दैट कि अगर किसी को टैक्सी हायर करनी है तो उसे एक फिक्स चार्ज पे करना है, और उसके साथ साथ जितनी वो डिस्टेंस कवर करता है उसके पर किलोमीटर का चार्ज भी पे करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें यहाँ से कहीं जाना है तो सबसे पहले आपको एक टैक्सी अगर हायर करनी है तो उस टैक्सी का मान लीजिए 100 रुपीज चार्ज फिक्स है, और फिर आप जितने किलोमीटर जाते हैं 5 रुपीज पर किलोमीटर उसकी कॉस्ट उसके साथ और ऐड की जाएगी. तो इस तरीके का कोई एग्जांपल यहाँ पर है और हमें यहाँ पर इसको फाइंड आउट करना है. फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105. तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस का चार्ज अगर 105 रुपीज है, जिसमें कि वो टैक्सी का फिक्स चार्ज इंक्लूड होगा और
कितना चार्ज होगा, और 10 किलोमीटर का जो पर किलोमीटर का रेंट है वो इंक्लूड होगा। वो टोटल मिला के 105 रुपीज उसको पे करने हैं। और इसी तरीके से 15 किलोमीटर का चार्ज है 155 रुपीज। तो फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और उसके बाद वो 25 किलोमीटर जाने में उसे कितना चार्ज देना होगा, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सी थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो वी विल टेक लेट द फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्ज मान लिया हमारे पास है ₹X मान लेते हैं, और चार्ज पर किलोमीटर वी कैन टेक एज ₹Y। तो जब ये 10 किलोमीटर जाता है, तो अगर पर किलोमीटर का चार्ज Y है तो 10 किलोमीटर का चार्ज इसके अकॉर्डिंग 10Y होगा। 10 किलोमीटर का चार्ज 10Y हो गया, और प्लस इसमें फिक्स चार्ज और ऐड कर दें, यानी कि X और प्लस कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी X प्लस 10Y और इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट, हाउ मच इट इज, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 105 रुपीज, एंड दिस विल बी द फर्स्ट कंडीशन। तो कंडीशन फर्स्ट को बनाने के लिए हमने पहले पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो Y रुपीज है, और वो 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज हम लिख लेंगे 10Y, और उसमें वो फिक्स चार्ज और ऐड करना पड़ेगा जो कि है X। तो X और 10Y इन दोनों का सम है हमारे पास 105 रुपीज। दिस इज द अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब इसमें सेकंड कंडीशन है, अगर वो जाता है 15 किलोमीटर्स, तो 15 किलोमीटर्स का चार्ज उसको पे करना है 155 रुपीज। तो व्हाट विल बी द सेकंड इक्वेशन, फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज, दैट इज 15Y, एंड इट इज इक्वल्स टू 155 रुपीज। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो गेटिंग माय पॉइंट कि आपको किस तरीके से इक्वेशन को इसके फॉर्म करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से इसको इक्वेशन बनाना सीख लीजिए। उसके बाद हमें सेम मेथड्स जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है उससे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर हम x की वैल्यू इक्वेट कर ले तो हम इसको 105 माइनस 10y, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए x की वैल्यू हमने इक्वेट कर ली, 10y को उधर शिफ्ट कर दिया। अब ये वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस x सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। x के प्लेस में हम क्या पुट कर रहे हैं, 105 माइनस 10y यहां से, और प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो 105 minus 10y plus 15y we get plus 5y is equals to 155. Now see 5y what we can write, 155 minus 105, 5y is equals to 105 में से 55 में से 105 माइनस कर दीजिए, तो what we get 50. So y equals to 50 upon 5, what we have 10. तो जो पर किलोमीटर का चार्ज हमारे पास आ गया वो y हमने लिया था, और वो आ गया ₹10। गॉट इट। तो अब x फाइंड आउट करने के लिए इस वैल्यू को इक्वेशन यहाँ पर इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो हमने यहाँ से x को राइट किया था। x हमने राइट किया था, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, तो y इज 10, तो इट विल बी 10 into 10 दैट इज 100। तो x हमारे पास कितना आ गया, 5 रुपीज। तो ₹5 इसका फिक्स चार्ज है, और पर किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपीज। अब देखिए ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं करता है। अब 10 किलोमीटर जाना है, तो 5 तो इसकी कॉस्ट फिक्स चार्ज हो गई, 10 किलोमीटर का की कॉस्ट 10 रुपीज से कितनी हो जाएगी, 100, तो कितने रुपए हो जाएंगे, टोटल इसका आता है 105। तो फर्स्ट कंडीशन इज दिस। इन द सेम वे वी कैन चेक फॉर द सेकंड कंडीशन, फिक्स चार्ज इज 5, अब 15 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपीज की कॉस्ट से, अगर 1 किलोमीटर का चार्ज 10 है तो 15 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 15 into 10 150, एंड इसका सम करेंगे तो हमारे पास आता है 155। तो इस तरीके से हम अपने आंसर्स को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो लेट अस सी नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ वन। डिस्कस करते हैं फोर्थ वी हैव ऑलरेडी डन। तो नाउ डिस्कस करते हैं फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट इज
A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो देखिए यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स में कंसिडर करना होता है, हमेशा 2 चीजों को फाइंड करना है, तो 2 उनके लिए अलग अलग वेरिएबल लेंगे। अब यहाँ पर जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन हम लेट द फ्रैक्शन बी, हम क्या ले लेते हैं x अपॉन y, क्योंकि फ्रैक्शन में भी 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर पार्ट एक डिनोमिनेटर पार्ट। तो हम कंसीडर कर सकते हैं लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज y। तो फ्रैक्शन को हम क्या राइट कर सकते हैं, x अपॉन y राइट कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशंस अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, सी फर्स्ट कंडीशन कहां से स्टार्ट होती है, it becomes 9/5 if 2 is added to both the numerator and denominator। अगर हम दोनों में, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें, what this becomes x plus 2 and it will becomes y plus 2 when we add 2 in the denominator, और ये किसके इक्वल बन जाता है, then it becomes equals to 9/11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, 11x plus 22 is equals to 9y plus 18, or we can write 11x minus 9y is equals to 18 minus 22, 11x minus 9y is equals to minus, condition कहां से स्टार्ट है, if 3 is added to both numerator and the denominator। अब दोनों में 3 ऐड करना है, तो we add x plus 3 upon y plus 3, दोनों में 3 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 5/6 के इक्वल। अगेन इन द सेम वे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x plus 3 18 is equals to 5y plus 15, or we can write 6x minus 5y is equals to 15 minus 18, or we get 6x minus 5y is equals to minus 3 is equation number 2. Now we have both the equations and we can simplify by using again substitution method to simplify these equations। तो किसी भी एक वेरिएबल से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज 6x इक्वल्स टू है हमारे पास 5y माइनस 3, इस 5y को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, x की वैल्यू निकाल लेते हैं 5y माइनस 3/6। तो आप किसी भी इक्वेशन से कोई भी वेरिएबल निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहां से वैल्यू कैलकुलेट करना इजी लग रहा है। अब ये वाली जो वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है, हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लें। तो सी दिस 11 into in place of x what we can write 5y minus 3/6 minus 9y is equals to minus 4। Now let us simplify this। तो इसको रब कर देता हूं मैं यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स सी, 11 को अंदर मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर इसके नीचे 1 लिख के 6 एलसीएम ले लीजिए। 6 एलसीएम आ गया हमारे पास, 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 5 जा 55/11 into minus 3 is minus 33, और यहां से जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज माइनस 54y इज इक्वल्स टू माइनस 4। जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 या 9 से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू नो वेरी वेल हाउ टू टेक द एलसीएम। तो अब आप सॉल्व करते हैं, 55 माइनस 54 दैट मींस y माइनस 33 इज इक्वल्स टू 6 4 जा वी हैव 24। y की जो वैल्यू आ गई 33 माइनस 24, 33 इधर शिफ्ट हो गया, तो y equals to 33 minus 24 is 9। So we have the value of y is 9। Put the value of y equals to 9 in this one to find out the x। 5 into 9 minus 3/6। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x में मिल जाएगा 5 9 45 minus 3/6 that is 42/6, 6 7 42। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 9। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, व्हाट वी कैन राइट दैट फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 7/9 इज द आंसर। ये जो जैकब lived 3 times that of his son। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present ages? So this age related questions are also very important for the point of view of board exams। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस में देखिए किस तरीके से हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, जस्ट वॉच इट केयरफुली। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं लेट
जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स। तो हमें यहाँ पर दो पर्सन्स की एज फाइंड आउट करनी है, एक जैकब की और एक उसके सन की। तो हम यहाँ पर इन्हीं दोनों चीजों को दो वेरिएबल्स की फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं, दैट एज ऑफ जैकब इज x ईयर्स और उसकी जो सन की प्रेजेंट एज होगी वो हमने कंसिडर कर ली y ईयर्स। ठीक है, नाउ सी द फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करने से पहले जो स्टेटमेंट हम देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब 5 ईयर हेंस का मतलब होता है 5 साल के बाद। तो ये जो रिलेशन हमें दिया है कि जैकब की एज उसके सन की एज का 3 टाइम्स हो जाती है, तो ये कंडीशन कब की है? आज से 5 साल बाद की। तो हमें इनकी सबसे पहले कंडीशन एजेस निकालनी पड़ेगी 5 years hence. 5 year hence means what is the Jacob age? Jacob age will be x plus 5 and his son's age will be y plus 5. तो क्योंकि आफ्टर 5 years हम निकाल रहे हैं, hence means आफ्टर 5 years, तो x plus 5 and y plus 5, क्योंकि प्रेजेंट एजेस x और y है। अगर हमें आज से 5 साल बाद इनकी एजेस चाहिए तो हमने इन दोनों में 5 प्लस कर दिया। अब कंडीशन है कि ये जो जैकब है इसकी एज 3 टाइम्स हो जाती है अपने सन की। 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स मींस मल्टीप्लाइड बाय 3। अब मल्टीप्लाई आप करते हो उस वैल्यू में, जो मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, मल्टीप्लाई करने से कोई भी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो हमें इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है, दोनों के एजेस को एक तरीके से इक्वल बनाना है। तो हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे? ऑब्वियसली हमें छोटी वाली वैल्यू में, यानी कि सन की एज में, क्योंकि सन की एज कम होगी, उसको इसके जैकब के इक्वल बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा उसके सन की एज में। तो लेट अस सी, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम ये राइट कर सकते हैं x plus 5 is equals to 3 times of y plus 5. So what we can write here, x plus 5 is equals to 3y plus 15, or we can write x equals to 3y plus 10. 5 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा और we get फर्स्ट इक्वेशन x equals to 3y plus 10. क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में मेथड में हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो हम किसी भी इक्वेशन को ऑलरेडी इसी फॉर्म में राइट कर लेते हैं ताकि हमें बाद में चेंज ना करना पड़े। अब बात करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन की। फॉर सेकंड कंडीशन द एजेस आर 5 years ago. 5 years ago मींस अब ना जो कंडीशन है वो 5 years ago यानी कि 5 साल पहले की है। तो वी राइट 5 years ago. What is the age of Jacob? x minus 5, और उसके सन की जो एज होगी वो होगी y minus 5. Now Jacob age is how many times? 7 times that of his son. Read the question carefully. Now जो कंडीशन हमें दी है वो जैकब की एज 7 times that of his son. 7 times means again multiply by 7. तो 7 मल्टीप्लाई आप किस में करोगे? Just as we have done here, 7 times of y minus 5. सन की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो we get x minus 5 is equals to 7y minus 35, or we can write x minus 7y minus 5 plus 35 equals to 0. X minus 7y plus 30 is equals to 0. Make it equation number 2. तो इक्वेशन में आप इस राइट साइड में भी ले जाके लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर रहे हैं। अब इस x की वैल्यू हम 3y plus 10 यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 से, तो आप राइट करोगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। लेट्स सी हियर, तो दिस इक्वेशन 1 and 2 वी नीड हियर। तो सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन 1 से जो वैल्यू है हम यहाँ रख रहे हैं x minus 7y plus 30 equals to 0 में। तो x के प्लेस में आप क्या पुट कर रहे हो? 3y plus 10 minus 7y plus this is 30 I think, 30 is equals to 0। तो राइट करते हैं
3y minus 7y, what we get? Minus 4y, and this is plus 40 is equals to 0. So 4y equals to 40, we get y is equals to 10. तो उसके सन की एज हमारे पास आ गई है 10 years. अब x फाइंड करना है, तो ये x y हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो x इक्वल्स टू क्या था हमारे पास? 3y plus 10. तो x इक्वल्स टू 3 इंटू y हमने 10 कैलकुलेट किया, तो 3 into 10 plus 10, that is 30 plus 10, so x we get 40 years. तो जैकब की एज आ गई हमारे पास 40 years और उसके सन की एज आ गई 10 years. So these type of questions are very important. You have to practice again and again. You have to practice it from the side books also and from other sample papers also. तो sample papers भी आप try कर सकते हो.